محمد نعرے حیدری نعرے حسین نعرے حسن نعرے حسین نعرے غوث نعرے غوث یا غوث یا غوث المدد المدد یا غوث المدد عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ امیر تحریک فیضان امر فاروق زندہ باد امیر تحریک فیضان امر فاروق زندہ باد برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر و افضل سمجھتا ہوں اس بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، ہم یتیموں کے سہارا، شاہوں کے شہنشاہ، رسولوں کے بادشاہ، مکی کے سرکار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کے نام اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جنہیں فرشتے بھی پیران پیر کہتے ہیں، جنہیں فرشتے بھی پیران پیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا فقیر کہتے ہیں۔ دعا قبول ہو یا رب ہے واسطہ غوث اعظم کا، دعا قبول ہو یا رب ہے واسطہ غوث اعظم کا، وہ جن کو اولیاء بھی اپنے امیر کہتے ہیں۔ حضرات محترم، تقریباً 10 روز سے آپ شہر اننت پور کی تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ آج مجھے بھی موقع مل گیا ہے، انشاءاللہ میں بھی ان کی گفتگو کا خواہش مند ہوں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ آپ کے سامنے جلوہ فرما ہوں گے، انشاءاللہ ان کی تقریر بھی آپ سماعت فرمائیں اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک فرماتا ہے خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ جب صاف صاف اللہ رب العزت اعلان فرما دیا تو ہو گیا، فائنل ہے، فکس ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم نہیں ہے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ چلیے حضرات محترم، یہ ماہ مقدسہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے میں۔
آج ہم یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کرنے اور چرچا سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا عالم تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے سے ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہو گیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں خیال آیا میں بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤں، میں بھی مکہ المکرمہ پہنچ جاؤں، کعبے کا دیدار فرما لوں، میں بھی کعبے کا طواف فرما لوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو ان کے امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں، اے امی جان، ہمارے علاقے سے ایک قافلہ مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤں گا، حج کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی جان فرمانے لگے، اے بیٹا عبد القادر، اور بھی حج کے لیے جانے کے لیے بہت وقت ہے، تم تو بہت چھوٹے ہو، ابھی علم دین حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد تم حج کرنا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر بیٹھتے ہیں، قافلہ روانہ ہو رہا ہے، قافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں قافلہ جانے لگی ہے، جیسے ہی قافلہ دور دور جا رہی ہے تو وہاں سے کیا ہے جتنے بھی لوگ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو رہے ہیں، اونٹوں کے اوپر سوار ہو رہے ہیں، لیکن میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک عجیب سا ایک پریشانی آ رہی ہے، عجیب سا ایک غم ہو رہی ہے۔ ارے قافلہ تو حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، مجھے تو کعبے کا دیکھنے کا دیدار میرے نظروں کے سامنے دور ہو رہا ہے، میں کعبے کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ قافلہ تو جا رہے ہیں، جیسے ہی قافلہ دور چلا جاتا ہے وہاں سے دھول اڑنے لگتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں جتنے بھی قافلے لوگ ہیں وہ تو روانہ ہو چکے ہیں، وہاں دھول ہی نظر آ رہا تھا، وہاں سے دھول ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ دھول کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پر بھی آ گئی ہے۔ جیسے ہی میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھول کو اپنے آنکھوں سے ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آنکھوں کے سامنے اس دھول کو ہٹاتے ہیں تو کعبہ نظر آ رہا تھا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غیب سے ندا آتی ہے، اے عبد القادر، کیوں گھبراتے ہو؟ تم کعبے کو نہیں جا سکے، کوئی بات نہیں ہے، کعبے کو تمہارے آنکھوں کے سامنے لا دیے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بڑے ہو گئے ہیں، میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، اب غوثیت کے مقام پر فائز ہو گئے ہیں، تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے وہ تو بچپنے کا عالم تھا، جب میں حج کے لیے نہیں جا سکا تو اللہ رب العزت کعبے کو میرے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، غوثیت کے مقام پر فائز ہو گیا ہوں، اب اللہ رب العزت اسی کعبے کو میرے گھر کے طرف پورا طواف فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت غوث اعظم کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ جب میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کے مقام پر فائز ہو گئے تو اللہ رب العزت کعبے کو حکم فرما دیا، کعبہ جاؤ میرے غوث پاک کے گھر کا طواف فرما دو۔ حضرات محترم، یہ شان ہے اللہ کے ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چلیے حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور اپنے امی جان سے عرض کرتے ہیں، امی جان، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے شہر بغداد جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ایک بھائی بھی ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے نا، زیادہ تر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی چرچا سنے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک بھائی بھی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ان کے بارے میں بولوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امی جان سے عرض کرنے لگے، اے امی جان، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں شہر بغداد کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ، اچھا عبد القادر، تم علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا چاہتے ہو، جاؤ بیٹا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کے خرچوں کے لیے 40 دینار اپنے جیب میں ڈال لیتے ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، آج کل ہمارا یہ ماحول ہے، اگر کوئی بچہ مسجد کے طرف زیادہ جانے لگتا ہے
तो घर में वालों को क्या है ना, टेंशन आ जाता है। अरे मेरा बच्चा ज़्यादातर मस्जिद को ही जाता है, नमाज पढ़ने लगता है, काम धाम नहीं करेगा, दुनिया की पढ़ाई नहीं करेगा। आजकल हमारे माओं का यही टेंशन है, हमारे वालिदैन का यही टेंशन है। बच्चा ज़्यादातर मस्जिद को जाता है तो दुनिया की पढ़ाई छोड़ देता है। हजरात, जब बच्चा मस्जिद को जाता है, नमाज पढ़ने लगता है, बुज़ुर्गों का जितना भी चर्चा मालूमात करता है, तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। हजरात, वो बच्चा बनता है। अब ये आपकी जिम्मा है, बच्चे को मस्जिद को भेजें या ना भेजें। अगर आप बच्चे को मस्जिद को भेजते हैं तो उसके दिल में खुदा का खौफ आ जाता है, मुस्तफ़ा की सुन्नत का पाबंद होने लगता है, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने लगता है। अगर आप इसी दीनी मजालिसों में भी नहीं भेजेंगे तो आपका बच्चा क्या है ना, रोडों पर गाने गाता हुआ, रोडों पर अल्लियाँ मारते हुआ अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। हज़रात मोहतरम, आप लोगों से गुजारिश है, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को दीनी इजलासों में भेजने की कोशिश किया करें। सबसे पहले नमाज की पाबंदी किया करें। इंशाअल्लाह जब बच्चा मस्जिद की तरफ आ जाएगा तो इंशाअल्लाह वो सुधर जाएगा और वो नात पढ़ने वाला बन जाएगा, इंशाअल्लाह वो बयान करने वाला भी बनेगा। और एक मतलब बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके अम्मी जान 40 दीनार अशरफियन देकर रवाना फरमा देते हैं। तो मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिले के साथ रवाना हो जाते हैं, बगदाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। रास्ते में क्या है ना, डाका जनी हो जाता है। वहाँ क्या है ना, डाकुओं इन काफिले को लूटने लगते हैं, सारे काफिलों को लूट रहे हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे हैं और एक शख्स आता है, एक डाकू आता है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछता है, अरे बच्चे तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रहने लगते हैं और डाकू पूछने लगता है, अरे बेटा तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन तेरे पास अशरफियाँ है कहाँ पर? लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मेरे जेब में 40 अशरफियाँ सी हुई हैं, मेरे अम्मी जान ने मेरे रास्ते में खर्चों के लिए 40 अशरफियाँ दिए हैं। तो डाकू परेशान हो जाता है, अरे जो भी डाका करता है, जो भी डाकू पूछता है, उसे तो माल छुपाने के लिए कहा जाता है, लेकिन तुम तो तुम्हारे पास जो माल था उसे हमें क्यों बता रहे हो? तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ की परवरिश देखिए, उनकी माँ का अखलाक देखिए, अपने बच्चों को क्या नसीहत करके भेजे हैं। और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, तूने बताया क्यों? तो हुज़ूर गौसे आज़म ने फरमाया, मेरे अम्मी जान ने कभी झूठ नहीं बोलने के लिए कहा है, कभी भी झूठ नहीं बोलने के लिए कहा है, हर हमेशा झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे, दुनिया में भी पकड़ा जाएंगे, कल क़यामत में भी पकड़ा जाएंगे। जो बंदा झूठ बोलता है दुनिया में ही वो रुस्वा हो जाता है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी अम्मी जान ने ये नसीहत किया है, ये नसीहत करके भेजे हैं, अरे बेटा अब्दुल कादिर कभी भी झूठ मत बोलना। ये अमल आज मैं यही किया हूँ। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास डाकुओं का सरदार आ जाता है, देखता है छोटा सा बच्चा है, 40 अशरफियाँ है, लेकिन ये छुपाने के बजाय क्यों बता रहा है? तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा किस्सा बताया, मेरे अम्मी जान ने कभी भी झूठ बोलने से मना फरमाया है, इसीलिए मैंने तो आज झूठ नहीं बोला हूँ। जो कुछ मेरे पास अशरफियाँ हैं उसको मैं आपके सामने रख दिया हूँ। जैसे ही इस बात को सुनना था, उस डाकू के दिल में हैबत पैदा हो जाती है, उस डाकू के दिल में डर होने लगता है। अरे बेटा तू तो छोटा बच्चा है, अपने बाप की बात को नहीं टालता, हम तो इतने साल हो गए हैं डाका करते जा रहे हैं, डाका करते जा रहे हैं, लोगों का माल लूटते जा रहे हैं, कभी भी हमारे दिल में ख्याल नहीं है, कभी भी हमारे दिल में डर नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी, कल कयामत में हमारा हाल क्या होगा? हम इतने लोगों को लूट रहे हैं, इतने लोगों का माल हाला, इतने लोगों के माल को हम हड़प दिए हैं। अब्दुल कादिर जिलानी, हमारा हश्र क्या होगा? तो मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे तौबा को कबूल फरमाएगा। तो डाकू तैयार हो जाता है कलमा पढ़ने के लिए। देखिए हजरत मोहतरम, डाकू तो एक नहीं है, उसके साथ तो बहुत सारे उसके शागिर्द भी हैं।
सारे शागिर्द आ गए हैं। अरे डाकू ये क्या माजरा है, अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुम ईमान वाले हो जाओगे, तो हमारा क्या आलम है, हमको भी कलमा पढ़ा दो, हम भी तौबा कर लेते हैं। देखिए हजरत मोहतरम हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सारे मजमे को कलमा पढ़ा देते हैं। जितने भी चोर थे, जितने भी डाकू थे, सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। हजरत इतना ही नहीं, उस डाकू का आलम क्या है आप जानते हो? शहर बगदाद में गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का पड़ोसी में ही उसका कब्र है। डाकू था, ईमान ले आया और अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर गौसे आजम के सदके उसे विलायत भी दे दी। बल्कि इतना ही नहीं, शहर बगदाद में हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जहां मज़ार है, उससे थोड़ी दूर बाद इस डाकू का भी मज़ार है। डाकू नहीं बल्कि वो भी अल्लाह का वली है। हजरत मोहतरम अभी बचपने का ही आलम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गौसे आजम को इतना मर्तबा अता फरमा दिया, इतना मर्तबा अता फरमा दिया, सारे डाकुओं के काफिले को ईमान करवा दिए हैं। सारे डाकू के काफिलों को कलमा पढ़कर और कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिए हैं। हजरत मोहतरम और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर बगदाद में आराम फरमा रहे हैं। एक शख्स दौड़ता हुआ मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर हो जाता है और अर्ज करने लगता है, ऐ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात में मुझे एक ख्वाब आया था, उस ख्वाब में मेरे वालिदे मोहतरम जहन्नम के आग में जल रहे हैं। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे अब्बा पर रहम फरमाइए, मेरे अब्बा पर करम फरमाइए। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स जरा ये तो बता, क्या तुम्हारे अब्बा मेरा मुरीद है? तो शख्स जवाब देने लगा, हुजूर मेरे अब्बा आपका मुरीद नहीं है। ऐ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो आपका मुरीद नहीं है। तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा वो कभी मेरे मजलिस में आया करता था? तो वो शख्स जवाब देने लगा, हुजूर नहीं नहीं, मेरे वालिद मोहतरम कभी भी आपके मजलिस में नहीं आए हैं। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा कभी वो मेरा लंगर को खाया था? अच्छा कभी वो मेरा लंगर को खाया था? उस शख्स ने जवाब दिया, हुजूर नहीं, आपका लंगर में कभी वो शरीक भी नहीं है। हजरात गौसे आजम का लंगर उसी वक्त मशहूर था। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लंगर खाना चलाना उसी दौर में मशहूर था, लेकिन क्या है ना, हम लोगों को उसकी मालूमात नहीं थी। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इल्म देखिए, आज तो किताबें बहुत हो गए हैं, सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ गई है, हर छोटी बात भी हमको फेसबुक में मिल जाती है, व्हाट्सएप के जरिए मालूमात हो जाती है, नेट में हम डाउनलोड कर लेते हैं। किताबें जितने भी हैं हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। आज के दौर में मुश्किल ये है इल्म पर अमल करना। इल्म दीन बहुत आसान से मिल रही है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरीका हम सुन्नियों के लिए छोड़े हैं, उसी वक्त एक तरीका हम सुन्नियों को छोड़े हैं, लंगर खिलाना, खाना खिलाना। उस वक्त गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मौजूदगी में गरीबों को खाना खिलाया करते थे। आज हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में आराम फरमा है, उनके निस्बत से आज हम भी खाना खिला रहे हैं। ये खाना खिलाना और ये 11वीं कहाँ से मशहूर है? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इल्म देखिए, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूरी पहाड़ से लगी, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले मर्तबा रब्बे जुल जलाल से जब बात करने के लिए कोहे तूर पहुंचे थे, वो भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, वो भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में जब जामे शहादत
नोश फरमाइए। वो भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत मोहतरम गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म देखिए, इसीलिए लंगर खिलाना उसी वक्त शुरू है। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मेरे वालिद मोहतरम ना आपके मुरीद हैं, ना आपके मजलिस में आया करते थे, ना कभी आपका लंगर खाया करते थे। तो वो शख्स जवाब देने लगा, हुजूर मेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमाइए, मेरे अब्बा पर करम फरमाइए। तो मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा जरा ये तो बता, कभी मेरे घर के सामने से गुजरा था? वो शख्स जवाब देने लगा, हाँ हुजूर मुझे याद है, एक मर्तबा वो आपके घर के सामने से गुजरा था। अच्छा चला जा, कल सुबह आ जाना। तो मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बारगाह में हाजिर फरमा थे। वो शख्स दोबारा आया और अर्ज करने लगा, मुस्कुराता हुआ आया था, पिछले दिन जब आया था तो परेशानी में आया था, जब अगले दिन आया है तो मुस्कुराता हुआ आया। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स जरा ये तो बता क्या हाल है? तो वो शख्स जवाब देने लगा, हुजूर रात में ख्वाब देखा हूँ, ख्वाब में मेरे अब्बा आए थे, मेरे अब्बा जहन्नम से हटकर जन्नत में खेल रहे हैं। हुजूर ये आपका करम है। तो मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तू आके गया था तेरे अब्बा जहन्नम में जल रहा था, मैं सारी रात सोया नहीं, तेरे अब्बा के लिए दुआ करता था। रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी दुआ को कबूल फरमा ली और तुम्हारे अब्बा को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचा दिया। हजरत ये गौसे आजम की शान है। जब मेरे गौस का इशारा होता है तो बरसों डूबी कश्ती वापस आ जाती है। जब मेरा गौस का इशारा होता है लोहे महफूज पे बिगड़ी तकदीर बदल जाती है। जब मेरा गौस का इशारा होता है तो बरसों पहले मरा हुआ शख्स जिंदा हो जाता है। ये शान गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मौला अली सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा का खुतबा दे रहे थे। सारे लोग वहाँ हुजूर गौसे आजम का खुतबा सुन रहे थे। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर से उतरते हैं, आकर एक शख्स के सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। सारा मजमा हैरान है, सारे मुरीदीन परेशान हैं। अरे ये क्या माजरा है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा को छोड़ दिए हैं, मिंबर पे उतर गए हैं और वो मिंबर से आगे आके एक शख्स के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए हैं। वो शख्स तो सो रहा है, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ बांधकर खड़े हुए हैं और उसका एहतराम कर रहे हैं। जैसे ही वो शख्स ख्वाब से बेदार होता है, नींद से उठ जाता है, तो जैसे ही जुमा हो जाती है तो सारे लोग वहां बैठ जाते हैं और उस शख्स के पास चले जाते हैं और उस शख्स से पूछते हैं, अरे शख्स ये तो बता तेरे ख्वाब में वो क्या मंजर चला है, अरे वो क्या शान हुई है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खुतबे को छोड़ा है, अपने मिंबर को छोड़ा है, तेरे आगे आकर हाथ बांधकर खड़े हो गए, ये क्या माजरा है? तो वो शख्स जवाब देने लगा, अरे लोगों सुनो सुनो, जैसे ही मुझे मेरे आंख में नींद आने लगी, मैं तो ख्वाब में चला गया था। जैसे ही मैं ख्वाब में देखता हूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ फरमा हो गए हैं। तो सारे लोग खुशी से झूमने लगे और वो शख्स कहने लगा, मैं तो ख्वाब में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा हूँ। वही ख्वाब में मैं जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखता हूँ तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं। हज़रत ख्वाजा मेरे हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं। हज़रत मोहतरम वो शख्स जवाब देने लगे हैं, ख्वाब में तो मेरे आका आ गए हैं, ख्वाब में तो मेरे रसूल आ गए हैं, मैंने मेरे रसूल को ख्वाब में देखा हूँ, लेकिन गौसे आजम भी वहाँ मौजूद है, लेकिन मेरे गौसे आजम मेरे आका को बेदारी में देखे हैं। मैं ख्वाब में देखा हूँ और मेरे गौसे आजम बेदारी में देखे हैं। हजरत मोहतरम वो शख्स कौन है जानते हैं? जिनका नाम हजरत अली बिन हैदी रहमतुल्लाहि अलैह है। जिनका नाम क्या है? हजरत अली बिन हैदी रहमतुल्लाहि अलैह। इनकी शान ये है, इनकी मर्तबा ये है, आला हजरत अजीमुल बरकत मजमा आमाल रजा में लिखते हैं, जो शख्स 4 मर्तबा या अली बिन हैद कहता है या अली बिन हैद कहता है,
اگر 4 مرتبہ کہہ کر سو جاتا ہے تو صبح تک اسے کوئی بھی مچھر نہیں کاٹے گا، کوئی بھی مچھر نہیں کاٹے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، حضرات محترم، جو شخص میرے آقا کو خواب میں دیکھتا ہے، جو شخص میرے رسول کو خواب میں دیکھتا ہے، وہ ولی اور ہیں، لیکن میرے غوث اعظم جاگتے میں دیکھتے ہیں، میرے غوث اعظم جاگتے میں دیکھے ہیں۔ غوث اعظم ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں بہت سارے اولیاء کرام میرے آقا کو بیداری میں دیکھے ہیں۔ حضرات محترم، آخری ایک واقعہ ہے، اب درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اگر ولی کی شان میں ادنا سا بھی بے ادبی کریں گے تو کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ولی کی مرتبے میں، کرامت میں، شان میں، ان کے بلندی میں اگر ادنا سا بے ادبی، گستاخی کی بات تو دور ہے، اگر ادنا سا بے ادبی بھی کریں گے تو اللہ رب العزت کو اس بے ادبی پسند نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، اگر کوئی میرے ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی میرے ولی کی شان میں توہین کرتا ہے تو میرے طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کے طرف سے اعلان جنگ فرما دے تو کس کی مجال ہے اس سے مقابلہ کر سکے۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کی شان میں کبھی بھی توہین نہیں کرنا، اللہ کے ولیوں کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا۔ حضرات، اور ایک بات ہے، خاص بات، ہم چاہے رضوی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، اشرفی ہو، ربانی ہو، جو بھی ہو، ایک سلسلے کے بزرگ کو اور ایک سلسلے کے بزرگ کبھی برا بھلا نہیں کہا ہے، لیکن آج ہم لوگ کیا ہے نا، ایک سلسلے میں مرید ہوتے ہیں اور ایک سلسلے کے پیر کو کم سمجھتے ہیں، اس سلسلے کے جد کو ہم کم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ربانی ہے تو آپ اس کی بھی تعظیم کریں، اگر کوئی رضوی ہے تو آپ اس کی بھی تعریف کریں، اگر کوئی اشرفی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، برکاتی ہے، حسنی ہے، جو بھی ہو، اب کیا ہے، ان کی تعظیم کریں، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں۔ کب کریں؟ وہ شریعت سے ہٹ کر اگر گستاخانہ باتیں کریں، اگر وہ شریعت سے ہٹ کر کچھ کہیں تو آپ اس وقت آپ کو بولنے کی اجازت ہے، ورنہ جلس کے حساب سے، حسد کے بنا پر اب کسی بھی بزرگ کو برا بھلا مت کہنا، چاہے وہ اچھے بھی کیوں نہ ہو، برے بھی کیوں نہ ہو، ان کا اعمال وہ دیں گے۔ اگر سنی ہیں تو، اگر کوئی وہابی ہے تو بلا وجہ آپ کیا ہے نا، ان کو جھاڑ سکتے ہیں، بلا وجہ آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ اگر وہابی ہو، اگر وہی سنی ہو تو انہیں آپ کچھ نہیں بولنا ہے۔ جتنے بھی میرے بھی مریدین ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، کسی اور سلسلے کے بزرگوں کو یا اور مریدین کو آپ کچھ نہ کہیں۔ اگر کوئی بدعقیدہ ہو تو آپ اس سے پنگا لینے کی کوشش کیا کریں۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کی شان میں اگر ادنا سا بے ادبی بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت برداشت نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، حضور خواجہ یہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ اب خطبہ فرما رہے تھے، اب لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 باتیں کہہ دوں۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور حضور خواجہ بندے نواز اجازت دیتے ہیں، اچھا جو بتانا چاہتے ہو بتاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں قادری سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی تو یہ شان ہے، جب ان کے والدہ محترمہ علم دین سکھانے کے لیے، قرآن خوانی سکھانے کے لیے اپنے استاد کے پاس لے جاتے ہیں تو استاد نے کہا، جب استاد نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو عبد القادر جیلانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الف لام میم سائکولو تلک رسول دنال تقریباً 18 پارے پورے سنا دیے ہیں۔ تو استاد فرمانے لگے، بیٹا کیا تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ میرے غوث اعظم کی شان دیکھیے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بچپنے کا عالم ہے، وہ جواب دینے لگے، اے استاد محترم، جب میرے امی جان، میں بچپن میں پیٹ میرے امی جان کے مادر شکم میں تھا، میرے امی جان کام کاج کیا کرتے تھے،
उस वक्त क्या है ना, मेरे अम्मी जान कुरान की तिलावत किया करते थे। मेरे अम्मी जान 18 पारों का हाफिजा थे, 18 पारों की हाफिजा। देखिए हजरत मोहतरम, जब बच्चा पेट में होता है, माँ जैसे हरकतें करेंगी वैसे ही आदतें बच्चों को आएंगी। अगर माँ फिल्म गाने देखेंगी तो बच्चे भी क्या है ना, बड़े होकर गाने ही गाएंगे। अगर आप कुरान की तिलावत करेंगे, अगर आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी क्या है ना, कुरान पढ़ने वाले बनेंगे और दरूद पाक पढ़ने वाले बनेंगे। अगर आप फिल्म देखेंगे, सीरियल देखेंगे तो आपके बच्चों को भी वही नसीहत मिलेगी, जैसे आप देखा करते थे आपके बच्चे भी वही देखेंगे। हज़रत मोहतरम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान 18 पारों की हाफिजा थे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती थे, जब मेरे अम्मी जान काम काज करते वक्त 18 पारे हिफ्ज किया करते थे, वो पढ़ा करती थी, मैं पेट में रहकर 18 पारे सुन लिया हूँ और हिफ्ज कर लिया। ऐ बंदा नवाज, मेरे गौसे आज़म की ये शान है, बचपन ही के आलम में 18 पारों के हाफिज बन गए हैं। मादरजाद 18 पारों के हाफिज हैं। तो हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दिल में थोड़ा सा ख्याल आया, अरे हम भी तो कुछ हैं, मैं भी तो वली हूँ, मैं भी तो दक्कन का बहुत बड़ा वली हूँ। बस ये दिल में ख्याल आना था। मजमा वहाँ से चला जाता है, सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, बस दिल में ख्याल आ गया है। जैसे ही ख्वाजा बंदा नवाज अपने दिल के अंदर झांकते हैं, नूर गायब हो गया है, नूर नजर नहीं आ रहा है। जो वही ख्वाजा बंदे नवाज जब जमीन पर नजर डालते हैं तो तहतो सरा नजर आ रहा था। जब आसमान के तरफ नजर डालते थे तो अर्श आजम नजर आ रहा था। जब आप जमीन के तरफ देखते हैं कुछ नहीं नजर आ रहा है, आसमान के तरफ देखते हैं आसमान के अलावा अर्श नजर नहीं आ रहा है, तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने पीरो मुर्शिद को आवाज देते हैं, ऐ पीरो मुर्शिद नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा ये मामला है। तो वो रूहानियत से हाजिर हो जाते हैं और मुराकबा करते हैं। तो क्या देखते हैं, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की विलायत चली गई है, उनके करामा चले गए हैं। वो मुराकबा में देखते हैं तो क्या पता चलता है, उनकी विलायत को, उनकी करामतों को हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छीन लिए हैं। ये हुजूर गौसे आज़म की शान देखिए, एक अल्लाह के वली, बहुत बड़े वली, अगर उनके शान में अदना से बेअदबी गुस्ताखी नहीं करे हैं, बस दिल में ख्याल ये करे हैं हम भी तो कुछ हैं, मेरी भी कुछ मर्तबा है, बस ये दिल में ख्याल आना था। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया। हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की विलायत को छीन लेते हैं और उनकी करामतों को छीन लेते हैं। और हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज अर्ज करने लगे, ऐ पीरो मुर्शिद मेरी विलायत को वापस फरमा दीजिए, मेरे करामतों को वापस फरमा दीजिए। तो हजरत नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ ख्वाजा बंदा नवाज, अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पीरो मुर्शिद को बुला लेता हूँ। तो उनकी पीरो मुर्शिद महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं और वो मुराकबा करने लगते हैं। तो क्या नजर आता है, हुजूर गौसे आज़म जलाल में है। महबूब इलाही फरमाने लगे, ऐ नसूरुद्दीन अब तुम गौसे आज़म जलाल में है, मेरे बस की बात नहीं है। वो उनके पीर मुर्शिद को बुला लेते हैं, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज हाजिर हो जाते हैं, वो भी मुराकबा करते हैं। तो क्या नजर आता है, गौसे आज़म ने विलायत को छीन लिए है, गौसे आज़म ने करामतों को छीन लिए हैं और गौसे आज़म जलाल में है। और सारे लोग यही कह रहे हैं अब तो गौसे आज़म जलाल में है, हमारे बस की बात नहीं है। चलिए हुजूर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करने लगते हैं, हुजूर ये माजरा है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं गौसे आज़म जलाल में है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी देखा तो गौसे आज़म जलाल में है। अब वो फरमाने लगे, ऐ बुजुर्गो, गौसे आज़म मेरा बेटा तो जलाल में है, अब मेरी तो बात नहीं है, उनके नाना की बारगाह में चले जाओ। तो आलम रूहानियत में मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जलाल में थे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अब तो मेरे भी बस की बात नहीं है। तो सारे लोग क्या है ना, आलम रूहानियत में हुजूर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चले जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज की विलायत चली गई है, कुछ करम फरमाइए, कुछ नजर फरमाइए। तो मेरे आका देखते हैं
तो मेरा नवासा जलाल में है, अब मेरी भी बात नहीं सुनेगा। मेरा नवासा जलाल में है, अब मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर वो किसी की बात सुनता है, एक ही शख्स की बात सुनता है, अगर वो किसी की बात सुनता है, एक ही खातून की बात सुनता है, अगर वो किसी की बात सुनता है, उसके माँ की बात ही सुनता है, वो खातून जन्नत है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चले जाओ, अगर वो कह देती हैं तो इनकी विलायत मिल जाती है। तो सारे लोग हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, अर्ज करने लगते हैं, ऐ अम्मी जान, वहाँ हुजूर गौसे आज़म ने तुम्हारे ही बेटे के एक औलिया कामिलीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की विलायत को जब्त कर लिए हैं। ऐ अम्मी जान, आप करम फरमाइए। जैसे ही सुनना था, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गौसे आज़म से फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, जैसे ही मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में थे, ठंडा हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। ऐ अम्मी जान, हुक्म। जैसे ही हुक्म होता है, हज़रत खातून जन्नत ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, बंदा नवाज की जो करामत है, जो विलायत है, वापस कर दो। हजरात, वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही से अपनी माँ की बात, एक भी बात नहीं टाले हैं। अब खातून जन्नत है, सारे माओं की माँ है। जब खातून जन्नत हुक्म फरमा दे तो मेरे गौसे आज़म क्यों टालेंगे। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाजा बंदा नवाज को एक विलायत दे देते हैं और उनके करामतें भी वापस फरमा देते हैं। और फरमाते हैं, ऐ बंदा नवाज, तुम मुबारक हो, तुम्हारे लिए एक विलायत आई है मेरे तरफ से। मेरे अम्मी जान ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें 2 विलायतें दे देता हूँ। एक विलायत है और एक विलायत और एक विलायत अपने तरफ से दे देता हूँ। हज़रत मोहतरम, एक गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बोलने की कोशिश किया करूँगा। हज़रात, और एक बात आप तमाम हज़रात गौर फरमाएं इस बात को, बहुत सारे उलमाए किराम, हमारे आलिम दीन इस बात को बयान कर चुके हैं, करते भी होंगे, लेकिन ये रिवायत क्या है, मन घड़त रिवायत है। आप इस पर तवज्जो ना दें। वो रिवायत क्या है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक धोबी था, और वो धोबी जब मर जाता है तो कब्र में फरिश्ते सवाल करते हैं, तो धोबी जवाब देने लगा, मैं अब्दुल कादिर का मुरीद हूँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। तो फरिश्ते चुप हो जाते हैं और वो जन्नत पे चला जाता है। हजरात, ये कहानी है, इसकी कोई असल नहीं है। हमारे उलमाए किराम अगर इस बात का आपके सामने जिक्र करते हैं तो क्या है ना, आप इस बात पर तवज्जो ना दें, क्योंकि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो धोबी का जो वाक़िया है वो गलत है। इसकी कोई असल नहीं है, इसकी कोई रिवायत नहीं है। सारे लोग बोलते हैं गौसे आज़म का धोबी जन्नत में चला गया। अरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का धोबी, और कुछ लोग कहते हैं वो तो मुसलमान था ना, वो तो मुसलमान है। अरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब जो धोबी का जो जिक्र करते हैं वो रिवायत नहीं है। आप इसके ऊपर तवज्जो ना दें। इंशाअल्लाह जो हकीकी बातें हैं, इंशाअल्लाह उन बातों पर अमल करने की कोशिश किया करें। जहाँ कहीं भी इसी दीनी इजलास चलते हों, इंशाअल्लाह जाने की कोशिश किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।